Now we will do the detail of drugs for Parkinsonism one by one. So first of all, we can give the first line drug that we can give in Parkinsonism is levodopa and carbidopa. ठीक है, levodopa जो होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है कि वो ब्रेन में एंटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, लीवोडोपा जो ब्रेन में एंटर हुआ और यहाँ पे डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज होता है, उसे डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है और डोपामीन से the normal function is restored. Okay, so we can give levodopa which enters the brain and convert into dopamine by decarboxylase. और why we can't give dopamine, क्योंकि dopamine जो है वो blood brain barrier cross नहीं कर सकता है, as a result of which we have to give levodopa. ठीक है, and we always give levodopa with carbidopa, क्योंकि carbidopa जो होता है वो पेरीफ्री में, अदरवाइज लीवोडोपा जो है वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा पेरीफ्री में, ठीक है। और हम पेरीफ्री में डोपामीन नहीं चाहते, बिकॉज इफ इट कन्वर्ट टू डोपामीन इन अ पेरीफ्री इट विल कॉज सीरीज ऑफ सिम्टम्स इन अ पेरीफ्री विच इंक्लूड्स vomiting and stuff like that. So we have to take this levodopa to the brain safely. So that's why we give carbidopa also, so that it doesn't convert into dopamine in the periphery. More so that we want more levodopa in brain and less effect in periphery. Now what are the side effects of levodopa? तो side effects of levodopa जो है उसका mnemonic है levodopa. Just always remember this mnemonic. So if anyone asks you, you know how to enumerate the side effects. Levodopa, L for lethargy, E for euphoria, V for vomit, O for orthostatic hypotension, D for delirium dyskinesia, O for on-off phenomena, P for priapism, A for acidosis. Okay, so the patient will be fatigued and he has a feeling of euphoria, then vomiting, orthostatic hypotension or vomiting will occur because of if it convert into in the periphery into the dopamine, delirium dyskinesia, because it's not normal. So it whenever we give it to the patient, it will also interfere with some of the functions of the brain, because anyways it's going in the brain, and then it shows on off phenomena. So it's very unique with the levodopa. What happened is like whenever we give the levodopa to a patient, it shows on off phenomena. It means sometimes it improves the functions, and the other times whenever it metabolized from the blood, the functions will drop. Okay, because normally what happened, dopamine is releasing continuously in our brain and the functions are normal. But levodopa, because anyways we are taking it from the outside, so whenever the level of levodopa drops in the blood, the functioning will also drop. So this is we called on off phenomena. फिर priapism हो सकता है, acidosis हो सकता है, ठीक है। अब जो लीवोडोपा है वो प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, तो आपने हमेशा इसको जिसको भी प्रिस्क्राइब करना है, यू हैव टू टेल हिम और हर that she or he has to take it on empty stomach. Okay, and it has drug interaction. तो आपने कभी भी इसको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ नहीं देना, अदरवाइज इट कैन कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ओके, तो क्या होता है कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे दिया आपने, साथ ही आपने लीवोडोपा दे दिया, तो क्या होगा कि एक तो लीवोडोपा का लेवल ज़्यादा हो, डोपामीन का लेवल ज़्यादा है, ऊपर से आपने उसका मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट कर दिया, क्योंकि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर उसके मेटाबलाइज करा था। अब रिलेटिवली बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोपामीन हो जाएगा, तो वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस करा सकते हैं। उसके बाद आपने इसको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साथ भी नहीं देना। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बेसिकली क्या करती हैं कि डोपामीन रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। अगर आपने एंटीसाइकोटिक्स के साथ दे दिया तो वो ऑलरेडी यहाँ पे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड है और इनहिबिट किया हुआ है, अब आप डोपामीन भी दे रहे हैं तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होगा। देन जो लीवोडोपा है इट्स ओनली फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर्स। उसके बाद क्या होता है कि टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। टॉलरेंस का मतलब ये है कि आप ड्रग तो दे रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी उसके साथ अडेप्ट होगी, एज द रिजल्ट ऑफ विच इट्स नॉट शोइंग इफेक्ट टू इट। ओके, नाउ वी विल डू मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि डोपामीन के मेटाबॉलिज्म को कम कर देंगे। वी हैव टू ऑप्शन इन दैट, वी हैव सिलेजनिन एंड वी हैव रेजेजनिन, ठीक है। अब मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में क्या होता है कि जो सिलेजनिन है ना, ये मोनोमाइन टाइप बी को इनहिबिट करेगा, जो कि सिर्फ डोपामीन को
जो है वो मेटाबोलाइज करते हैं। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ओ टाइप ए जो होता है वो एसिटाइलकोलिन को करता है, और जो टाइप बी होता है वो डोपामीन को करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेलेजनिन बहुत हाई डोज में दे दी तो वो अपना फंक्शन जो स्पेसिफिसिटी है वो लूज़ कर देगी, और इट स्टार्ट इनहिबिटिंग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए ऑल्सो। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच एसिटाइलकोलिन और डोपामीन दोनों का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो मोनोअमाइन टाइप ए जो था वो एसिटाइलकोलिन को मेटाबोलाइज करता था, अब टाइप ए भी इनहिबिट हो गया है एट हाई डोजेस, तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डोपामीन का भी, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। इसके अलावा सेलेजनिन जो है वो इन्फेटामीन में कन्वर्ट हो जाती है मेटाबोलाइज होके, और इन्फेटामीन जो है वो इंसोम्निया कॉज करती है, ठीक है, स्लीपलेसनेस। सो आपने कभी भी इसको मिड नून के बाद नहीं देना। इफ़ यू गिव टू समवन आफ्टर मिड नून तो वो रात को सो नहीं पाएंगे क्योंकि उनको इंसोम्निया हो जाएगा। फिर वी हैव टॉल्कापॉन एंटाकोपोन। टॉल्कापॉन एंटाकोपोन जो है वो हमारे पास कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स थे, तो वो प्रिवेंट करते हैं इसके मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, पेरिफ्री में भी प्रिवेंट करेंगे और ऑल्सो इन द ब्रेन भी प्रिवेंट करेंगे। टॉल्कापॉन जो है वो सेंट्रल एक्शन होता है उसका, और एंटाकोपोन का सिर्फ पेरिफेरल एक्शन होता है। तो आपने जब उनको दे दिया तो ये प्रिवेंट करते हैं इनके मेटाबॉलिज्म टू फॉर्म मिथाइल डोपा, ठीक है। आप इससे देते हैं ताकि आप डोपामिन का लेवल जो वो ब्रेन में इंक्रीज़ कर सकें। ये ना हो कि लीवोडोपा जो आपने दी है वो सारी पेरिफ्री में ही मतलब मिथाइल डोपा में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें लीवोडोपा प्लस इंसोम्निया एंड डायरिया। लीवोडोपा में वही है लेथार्जी, यूफोरिया, वॉमिटिंग, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, ठीक है, वो पूरा निमोनिक, एंड इट ऑल्सो कॉज इंसोम्निया एंड डायरिया, ठीक है। अब जो टॉल्कापॉन है वो आपने बहुत ज़्यादा समझ के देनी है, बिकॉज इट कैन कॉज फल्मिनेटिंग हेपेटाइटिस। फल्मिनेटिंग हेपेटाइटिस क्या होता है कि इट्स सच अ सेवियर हेपेटाइटिस दैट द लिवर लूज इट्स फंक्शन विद इन वीक्स। फल्मिनेटिंग हेपेटाइटिस था बर्न आउट हेपेटाइटिस के मतलब आप पेशेंट का जो लीवर फंक्शन है वो बिल्कुल लूज हो जाएंगे कुछ ही वीक्स में, और अगर लीवर फंक्शन लॉस हो गया तो रिगार्डिंग फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपके जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो लिवर जो है वो रिमूव करता है। लेकिन अगर लिवर ही ना रहा तो फिर टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे, दे कैन गो टू द ब्रेन एंड देन प्रोड्यूस साइड इफेक्ट्स, ठीक है। और टॉल्कापॉन का जो होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। इफ़ यू आर गिविंग टॉल्कापॉन देन यू कैन गिव इट 3 times per day, और इफ़ यू आर गिविंग एंटाकोपॉन यू कैन गिव 5 times per day, बिकॉज टॉल्कापॉन का लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसीलिए इसको जो है वो किया जाता है प्रेफर। लेकिन फल्मिनेटिंग हेपेटाइटिस की डर की वजह से जो है वो इसको ध्यान से देना चाहिए।